Hello students, today in this session we will take up two questions. One is a very routine kind of question from the chapter of ray optics and the other one is from thermodynamics. And the thermodynamics question is conceptually a bit similar to what we saw in JEE Advanced question paper in year 2022, that fluid mechanics thermodynamics question, chimney wala question, if you could recall that. So, conceptually it is similar, but first we will have a look at this ray optics question. It is a very conventional type of routine type of question and many of you will be able to do it, I guess, but let us see. A convex mirror has focal length f. A boy is looking at the image of his face in the mirror. There is a convex mirror in front of you and you are looking at your self image of your face in the mirror. Least distance of distinct vision for the boy is d. Least distance of distinct vision is d. What is the maximum magnification of the image that he could comfortably see? Now there are two things. You have a convex mirror of a fixed focal length f. You are looking at image of your face. You can vary the distance, you can change the distance of your face from the mirror, but at the same time you have to be mindful that your eyes can see an object or an image clearly only when the distance is at least d. Least distance of distinct vision is d, means if an object or an image is at a distance of d from your eye or further away from it, you are comfortable in seeing that. If the object is very close to your eye, you are seeing that, but it is blurred. I am able to see this hand, but it is blurred. The image is not clear. The image is not exactly formed on the retina by the eye lens. I hope all of you know this. So, with this constraint in mind, we have to find out what is the best possible magnification that the student can obtain. This is the convex mirror and let us assume that this is the object. I am simply drawing it as an arrow, though it is a face of a person. So, this is our object. We all know that a virtual image will be made on the other side of the mirror, which will have height smaller than the actual object. Somewhere here, there is the image, and I that is watching this image is here only. The boy is watching the image of his face only, right? So, the eye is here only, right? So, the constraint is that the distance of the image from this particular eye should be at least d. If it is greater than d, it is okay, but it should never be less than d. Otherwise, the image will not be visible properly to the eye. So, keeping that constraint in mind, we have to understand what is the maximum possible magnification here. पता नहीं, एक तो पहले आप कॉमन सेंस से शायद थोड़ा गेस मार सकते हो. ऐसे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो एट द पोल ऑफ द मिरर, देन इमेज इज फॉर्म्ड हियर ओनली, इजंट इट. अब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके दूर जाओगे, इन्फिनिटी पे चले जाओगे, तो जो इमेज है वो यहाँ से चल के इधर फोकस पे आ जाएगा. ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज यहीं. इफ यू मूव द ऑब्जेक्ट अवे, द इमेज विल ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम द मिरर. When the object is at infinity, image will be at the focus of the mirror. So, what I mean to say is, if you increase this distance x, this distance y will also increase, right? And we have to bear in mind that this x plus y should not be less than d. तो अब आप खुद से सोचिए, कुछ सोच पा रहे हैं? नहीं. मैग्निफिकेशन के बारे में भी सोचिए. जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इमेज यहीं पे है, मैग्निफिकेशन इज 1. अब आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर करोगे, इमेज तो दूर भाग ही रहा है और मैग्निफिकेशन छोटा होता जा रहा है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, image is at focus,
मैग्निफिकेशन इज लिटरली 0। तो हमें बढ़िया से बढ़िया मैग्निफिकेशन चाहिए। तो जैसे ऑब्जेक्ट को दूर करोगे, इमेज इधर चलने लगा एंड द मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस। ये ऐसे भी समझ में आता है कि जो इमेज डिस्टेंस है वो 0 से f होगा जब तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 से इंफिनिटी हो जाए। सो v बाई यू जो मैग्निफिकेशन है, v तो थोड़ा ही बढ़ेगा, u बहुत बढ़ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन इज ड्रॉपिंग, ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे जैसे इसको दूर करेंगे मैग्निफिकेशन घटता जा रहा है, राइट। तो बहुत दूर रखेंगे तो मैग्निफिकेशन बहुत छोटा हो। तो शायद अब आप मेरी बात को समझ गए। हमें इस ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है तब तक जब तक कि x प्लस वाई डी के बराबर ना हो जाए, क्योंकि अगर सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात होती तो मैं ऑब्जेक्ट को यहीं रखूंगा, इमेज यहीं बनेगा, मैग्निफिकेशन 1 होगा, वो सबसे बड़ा मैग्निफिकेशन। मैं थोड़ा पीछे होता हूं, मैग्निफिकेशन 1 से कम हो गया, 0.9 हो गया, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी बहुत छोटी है, d/2 है, तो मेरी आंखों को ठीक से दिख नहीं रहा है। तो मैग्निफिकेशन तो बड़ा है, 0.9 है, बट मेरी आंखों को ठीक से दिख नहीं रहा है। तो मैंने थोड़ा और पीछे किया, इमेज और पीछे गया, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज d। इस पोजीशन में मैग्निफिकेशन 1 मिनट के लिए बातचीत के लिए मान लेते हैं कि 0.7, यही सबसे बड़ा मैग्निफिकेशन है जो मैं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को और पीछे किया, इमेज और पीछे गया, मैग्निफिकेशन और छोटा हो जाएगा। तो d से बड़ा डिस्टेंस तो अलाउड है इसके और इसके बीच में, बट देन मैग्निफिकेशन विल ड्रॉप। सो द बेस्ट पॉसिबल केस जिसमें हमें मैग्निफिकेशन बड़ा से बड़ा मिले और साफ साफ दिख भी जाए, वो क्या है? यहां से यहां की दूरी d होनी चाहिए। आई होप कि आप ऐसे ही समझ गए। चलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख देता हूं, उससे जरूर समझ जाएंगे अगर आप मेरी बातों को अभी तक नहीं समझ पाए। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ लिख देता हूं, उससे आप जरूर समझ जाएंगे। आप लोग मैथमेटिक्स बहुत समझते हैं। मिरर फॉर्मूले में अगर मैं इन क्वांटिटीज को सब्स्टिट्यूट करूं, देखिए x और y पॉजिटिव नंबर्स हैं, दे आर जस्ट डिस्टेंसेस, जैसा कि पिछले वीडियो में थे। तो v की जगह मैं क्या लिखूं? आंसर है प्लस वाई, राइट। u की जगह पे क्या लिखूं? -x। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है, पॉजिटिव, ऐसा लिख दिया। सो 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/f, which means y is equal to xf by x plus f। तो जिस मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन, आई एम जस्ट वरिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, मैग्निफिकेशन इज y upon x, so this is f by x plus f। तो यहां से भी आपको दिखाई दे रहा है कि मैग्निफिकेशन बड़ा होने के लिए जरूरी है x छोटा। x की सबसे छोटी वैल्यू जो पॉसिबल है वो 0। x जब 0 है तो मैग्निफिकेशन 1 है, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता कि आंखों को इमेज क्लियरली दिखनी चाहिए। तो आंख, दैट मींस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के डिस्टेंस कम से कम d होनी चाहिए। अभी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस 0 है, मैग्निफिकेशन तो बड़ा है लेकिन डिस्टेंस 0 है। तो x को 0 नहीं रख सकता, बढ़ाना होगा। x को थोड़ा बढ़ाने से मैग्निफिकेशन थोड़ा घटा, पर बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी d नहीं हुई, तो x को थोड़ा और बढ़ाना होगा। x को तब तक बढ़ाना होगा जब तक x प्लस वाई डी नहीं हो जाता। उस केस में जो भी मैग्निफिकेशन आया वही सबसे बड़ा मैग्निफिकेशन है, जिसमें मुझे इमेज साफ साफ दिखाई देगा। उसके बाद अगर मैं x को और फर्दर बड़ा करता हूं तो मुझे इमेज साफ साफ दिखेगा, बट मैग्निफिकेशन विल बी फार लेसर। तो मुझे मैग्निफिकेशन भी बड़ा रखना है और साफ साफ भी देखना है। तो आइडियल केस यही होगा कि मैं x प्लस वाई को d पे सेट करूं। So x plus y is equal to d। ये कंडीशन हर हाल में सेटिस्फाई होनी चाहिए। Now what is this y? I am substituting y in terms of x, so this becomes x plus f is equal to d. So this becomes x square plus xf 2xf is equal to xd plus fd, which means x square plus x 2f minus d minus fd is equal to 0, राइट। तो ये क्या कंडीशन है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से मुझे x की वो वैल्यू मिलेगी जिसके लिए
x प्लस वाई डी के इक्वल है, x प्लस वाई डी के इक्वल है। यहां मैंने y को x के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया है एंड आई होप कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। 2xf x, एक मिनट देख लेता हूं भाई, x को इधर किया 2f माइनस डी, ठीक लग रहा है। तो बच्चों अब आप इस इक्वेशन को अगर x के लिए सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको ऐसा लिख देता हूं, d माइनस 2f माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज दिस स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 4f स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 4fd और प्लस 4fd कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। दिस डिवाइडेड बाई 2a, so this divided by 2, so the value of x d minus 2f plus of under root 4f square plus d square by 2 should be acceptable to all of us. Can you see that? ये माइनस साइन मैंने यहां क्यों छोड़ दिया, नहीं लिया, वो जस्टिफाई कीजिए। खुद से सोच के देखिए कि माइनस साइन लेना चाहिए क्या मुझे, मैंने छोड़ दिया। ठीक ठीक किया क्या, आप समझिए। अब जो मैग्निफिकेशन है y बाई एक्स, f बाई एक्स प्लस एफ, ये x की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए। x की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट करने से, x की वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट करें तो ये मैग्निफिकेशन जो है ये x प्लस एफ लिखेंगे तो ये 2f कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा d प्लस अंडर रूट 4f स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और ऊपर में आ जाएगा 2f। तो दिस इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट वी कैन ऑब्टेन। अगर आप यहाँ पे माइनस साइन को एक्सेप्ट करोगे, माइनस साइन को यहाँ एक्सेप्ट करोगे तो खुद से देखो कि क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ मैग्निफिकेशन की वैल्यू। प्लीज रिमेंबर दैट magnification in case of a convex mirror is always a positive number. So this is the maximum possible magnification that one can have if the least distance of distinct vision is d. So this solves the problem. ये thermodynamics या fluid mechanics जो कह लें, उसका एक क्वेश्चन है जो मैंने इरोडोव से लिया है, उसको थोड़ा सा उसमें कुछ और assumptions मैंने ऐड कर दिए हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा साफ तरीके से समझ में आए। जैसा कि आमतौर पे IIT JEE या JEE एडवांस के क्वेश्चन पेपर में होता है, अजम्पशंस थोड़े क्लियरली स्पेल्ट आउट होते हैं। प्लस इस क्वेश्चन का एक और रेलिवेंस है, JEE एडवांस 2022 में जो थर्मोडायनेमिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स का चिमनी वाला क्वेश्चन आया था, 23 नहीं 2022 में, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वो काफ़ी मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत रेलिवेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक थर्मली इंसुलेटेड बॉक्स है, इसमें हीलियम गैस किसी हाई टेम्परेचर T पे भरा हुआ है। इस बॉक्स में एक होल है और उसके बाहर वैक्यूम है। क्वेश्चन ये है कि जब इस होल को हम अनप्लग करते हैं, खोलते हैं, तो गैस किस स्पीड से बाहर निकलेगा। यहाँ पर अजम्पशंस ये हैं, थर्मली इंसुलेटेड वेसल, assume that all gas molecules come out from the hole with same velocity, ignore flow speed inside the container, कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स की फ्लो स्पीड को आप इग्नोर करो, एंड assume that diameter size of this hole is much larger than mean free path length of the gas molecules। आपको ये स्पीड बतानी है इन assumptions के साथ। मैंने बहुत क्लियरली सारे assumptions लिखे हैं, फिर से एक बार समझाता हूँ, मीनिंग समझाता हूँ। assume all gas molecules come out from the hole with same velocity। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो हमारे शहर में अभी रोज शाम को तूफान आता है, मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ, तो विंड का एक एलिमेंट अगर हम इमेजिन करें, हवा का एक वॉल्यूम इमेजिन करें, तूफान आने से ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ आ गया, ये पूरा का पूरा हवा एज ए बल्क मूव कर रहा है, मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट हो रहा है। लेकिन इस मूवमेंट के अलावा इस बल्क में बैठ के देखूं तो ये सारे हवा के पार्टिकल भी इधर उधर रैंडमली भाग रहे हैं, ये रैंडम मोशन है, ये बल्क मोशन है। और इसके अंदर बैठ के देखूं तो मॉलिक्यूल्स का इधर उधर वाला मोशन ये रैंडम मोशन है। तो जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है वो बेसिकली इस रैंडम मोशन के कारण बनती है।
ये रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ये जो बल्क मोशन, ऑर्डर्ड मोशन है, इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इंटरनल एनर्जी में काउंट नहीं करते हैं। तो जब इस क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो यहाँ से जो गैस मॉलिक्यूल निकल रहे हैं सब के सब सेम वेलोसिटी से निकल रहे हैं, मतलब ये गैस मॉलिक्यूल्स सब के सब सेम वेलोसिटी से अगर निकल रहे हैं तो यहाँ पे तो एक सिर्फ ऑर्डर्ड मोशन है इन गैस मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे कोई रैंडम मोशन नहीं है। ये कहा जा रहा है, इसका सीधा मतलब ये हुआ यहाँ पे एज ए बल्क काइनेटिक एनर्जी है, पर उस बल्क के अंदर बैठ के देखें, उसके सेंटर ऑफ गैस एलिमेंट के कोई एलिमेंट ले लें और उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए तो मॉलिक्यूल्स का इधर उधर कोई भागना नहीं है, कोई रैंडम मोशन नहीं है। तो जो इंटरनल एनर्जी जिसको हम नॉर्मली समझते हैं वो चीज नहीं है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ D इज मच मच लार्जर देन लैम्डा। अगर इस कंटेनर में होल का साइज बहुत छोटा होता, मीन फ्री पाथ लेंथ से छोटा, तो कैसा एमिशन होता है? एक गैस मॉलिक्यूल निकल आया, दूसरा गैस मॉलिक्यूल निकल आया, इसको इफ्यूजन डिफ्यूजन कुछ कह सकते हैं आप। यहां से गैस मॉलिक्यूल निकल आया, यहां से निकल आया, यहां से निकल आया। ये ऑर्डर्ड मोशन नहीं होता। एक एक गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल कभी निकल गया, कभी एक और निकल गया, कभी दो और निकल गए। एक बल्क फ्लो जिसको कहते हैं वो नहीं होता। लेकिन अगर ये होल का साइज मीन फ्री पाथ लेंथ से बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक साथ कई सारे गैस मॉलिक्यूल इजेक्ट हो सकते हैं। ये एक तरह से जैसे लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उस तरह का फ्लो है। सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम वेलोसिटी से, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम स्पीड से, कोई रैंडम मोशन नहीं। तो एक तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो जैसी सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में गैस किस स्पीड से बाहर निकलेगी, ये क्वेश्चन है। आप में से जो लोग ट्राई करना चाहें जरूर करें। नॉर्मली जो लिक्विड्स के लिए, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन लिखते हैं, उसमें ये लिखते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का प्रेशर जो है वो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। हाफ रो बी स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रो जी एच, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। और अगर हम इस तरह के गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें एक और किस्म की एनर्जी लिखनी चाहिए, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये गैस का यूनिट वॉल्यूम इमेजिन करें तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन है उसकी वजह से जो एनर्जी है वो एनर्जी हाइट वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एलिमेंट का कोई बल्क मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी, बल्क मोशन की काइनेटिक एनर्जी, और प्रेशर एनर्जी। मतलब जो नॉर्मली आप पढ़ते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, उसमें एक और टर्म जोड़ने की सजेशन दे रहा हूँ। अगर हम मॉलिक्यूल्स की इस रैंडम मोशन की को भी अलाउ कर रहे हैं, जो कि नेचुरली इस बॉक्स के अंदर तो हो ही रहा होगा, क्वेश्चन के हिसाब से बॉक्स के बाहर जो गैस निकल गई उसमें नहीं हो रहा है, तो ये चारों टर्म का सम कांस्टेंट है। ठीक, अब U, व्हाट डज U मीन? आप सभी ने पढ़ा है कि जो आइडियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी NCV/T लिखी जा सकती है, जहां T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, CV मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और N नंबर ऑफ मोल्स हैं। हमें क्या लिखना है? इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अगर ध्यान से देखें, अगर मैं पर यूनिट मास लिखना चाहूँ, इसको पर यूनिट मास, N मोल गैस की इंटरनल एनर्जी है, इसको गैस के मास से डिवाइड कर दीजिए। कैपिटल M रेफर्स टू मोलर मास। अगर N मोल गैस है, 2 मोल हीलियम है, तो 2 × 4 8 ग्राम हीलियम है। 8 ग्राम हीलियम की इंटरनल एनर्जी इतनी है, तो पर ग्राम हीलियम की कितनी हुई? इतनी। अब इस इंटरनल एनर्जी को अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम लिखना चाहो, ये जो हम स्मॉल u यहां पर लिख रहे हैं, दिस पर यूनिट मास, यूनिट मास के लिए यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आएगा? रो kg। अगर रो डेंसिटी है गैस की तो यूनिट वॉल्यूम में रो kg मास आएगा। ये पर kg या पर ग्राम मास की इतनी एनर्जी है, तो यूनिट वॉल्यूम मतलब रो kg या रो ग्राम की कितनी एनर्जी होगी? दिस इनटू रो। तो ये n कैंसिल हो गया, CVT/m इंटू रो, जहां रो इस गैस की डेंसिटी है। तो आप ऐसा लिख सकते हो। अब आप देखिए बर्नौलीज इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं, ये जो इक्वेशन है हमारा,
इसको मैं लिख रहा हूं यहां और यहां के लिए, है ना, इन दो पॉइंट्स लेके ये चारों टर्म का सम कांस्टेंट कर रहा हूं। यहां का प्रेशर T मान लिया, यहां पे कहा गया है कि इसमें जो बल्क मोशन है इसको इग्नोर करो, तो ये वाला टर्म 0। हाइट तो यहां सेम है, या मान लो ये चलो ग्रेविटी फ्री स्पेस में ही है, या है भी तो यहां हाइट तो सेम ही है ना, दोनों तरफ लिखना सेम पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं लिख रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं। और U ये इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या लिखूं, CV T मोलर मास गैस की डेंसिटी, ठीक लिखा। दिस इक्वल टू, यहां इस पॉइंट पे आते हैं, प्रेशर वैक्यूम है 0, पहला टर्म 0, हाफ रो बी स्क्वायर है, यही निकालना है हमें। हाफ रो बी स्क्वायर मतलब बल्क मोशन की काइनेटिक एनर्जी है। हाइट वाला टर्म हमने कहा नहीं लिखेंगे, और U नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स का कोई रैंडम मोशन कंसिडर मत करो। सारी एनर्जी जब गैस बाहर आई, बल्क मोशन, गैस मॉलिक्यूल सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनके पास जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो बस इस टर्म में आ गया। बल्क मूवमेंट के अलावा इधर उधर कोई रैंडम मोशन वाली एनर्जी है ही नहीं, तो यही हो गया, यही हो गया। तो नेचुरली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2p बाई रो प्लस CVTM रो टू, रो कैंसिल कर देना भाई, ये रो यहां से हटा देते हैं, दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को गिवन टर्म्स में एक्सप्रेस करने से बात बन जाएगी। देखिए P बाई रो आप आइडियल गैस के लिए शायद प्रूव कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT से प्रूव कर सकते हैं कि P बाई रो जो होता है वो RT बाई कैपिटल M आ जाता है, आप खुद से करके देख लीजिएगा। प्लस 2 CV क्या है, CV क्या होता है, R बाई गामा माइनस 1। हीलियम है तो इनफैक्ट हीलियम लिखा है तो इतना टेंशन क्यों लें, 3/2R लिख लीजिए, है ना, यही CV है, इंटू T, ठीक लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय M, दिस इज इक्वल टू V। तो ये गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में आपकी स्पीड निकल आई गैसियस मॉलिक्यूल्स की, जिससे वो इस कंटेनर के बाहर आएंगे। एक बार देख लीजिएगा कहीं मैंने 2 और ये सब कुछ छोड़ छाड़ ना दिया हो, प्लीज करेक्ट इट फॉर एनी सच मिस्टेक, बट आई होप कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसी कॉन्सेप्ट 2022 वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको बर्नौलीज इक्वेशन लिखते समय इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का भी ख्याल करना था। उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी इस चैनल पे है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और एक बार उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज उस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसलिए आप उसका वो महसूस कर चुके थे कि उन्होंने ज़्यादा गलत क्वेश्चन पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। तो कई बार ऐसा मैंने देखा है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके पूछते हैं, जब भी उन्हें लगता है बड़ा कठिन पूछ दिया, तो आने वाले सालों में उसका थोड़ा सिंपलर फॉर्म पूछ लेते हैं। हाँ, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।